Hello students, welcome to lecture number 2 of chemical classification and periodic table. In our previous lecture we stopped our discussion at Mendeleev periodic table and the advantages of the Mendeleev periodic table. So today we are going to discuss about modern periodic table or long form of the periodic table or Bohr periodic table. Basically it is more popular with the name long form of the periodic table. उसको पढ़ने से पहले हम एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे. जब मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल डेवलप हुई उस वक्त साइंटिस्ट को एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में कोई बहुत ज़्यादा पता नहीं था कि एटम के अंदर का स्ट्रक्चर किस तरह का है. लेकिन धीरे धीरे जब डेवलपमेंट हुई फंडामेंटल पार्टिकल्स की, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह की, तो उसके बाद जो है लोगों ने काम करना शुरू किया. एक साइंटिस्ट हुए हैं मोज़ले. ही इन फैक्ट tried to find out a correlation between your frequency of the X-ray emitted with atomic number, and he observed that the square root of the frequency of the X-ray emitted, if it is plotted against the atomic number, then it comes out to be a straight line. उसने क्या किया कि हम डिफरेंट मेटल सरफेस पे, आपको पता है कि जब कैथोड रेज इरेडिएट करते हैं तो आपकी एक्स रेज निकलती हैं, एक हाईली एनर्जेटिक रेडिएशंस निकलती हैं एक्स रेज. ही नोटेड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दोज एक्स रेज और उसने एक ग्राफ प्लॉट किया. इधर उसने लिए एटॉमिक नंबर और इधर उसने लिया स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इमिटेड एक्सरे. और ये जो थी ये इट वाज स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन आई. और इससे उसने ये कंक्लूड किया कि जो आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स हैं दे डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर rather than atomic mass, and he propagated that this atomic number is more fundamental quantity than the atomic mass. atomic mass से ज़्यादा fundamental quantity atomic number है. और on the basis of this observation he put forward a law which is called modern periodic law or Moseley's periodic law. तो modern periodic law was stated as modern periodic law states that physical and chemical properties of elements are periodic functions of their atomic number. ये modern periodic law है. And on the basis of this modern periodic law, a new table or new periodic table was constructed in which the different elements they are arranged in order of their increasing atomic numbers. और उसको हम बोलते हैं modern periodic table, or more popularly it is known as long form of the periodic table, and it is also called Bohr's periodic table. But because it is more famous with the name long form of the periodic table, तो जनरली हम इसको long form of periodic table भी बोलते हैं, ज़्यादातर long form of periodic table ही बोलते हैं. Now before discussing the structural feature of long form of periodic table,
let me draw the periodic table in the long form. So I have drawn this modern periodic table or the long form of the periodic table. इसके स्ट्रक्चरल फीचर की बात करें, there are 7 horizontal rows numbered from 1 to 7. ये 7 horizontal rows हैं, ठीक है, और इनके नंबरिंग की हुई हमने 1 से 7 तक. ये जो horizontal rows हैं इनको हम कहते हैं periods. So these are your period number 1. Period number 1 will contain only 2 elements, that is hydrogen and helium. We will be discussing why only 2 elements are there in the first period. Likewise, we will be discussing about this. Then there are 18 vertical columns. These vertical columns, they are called groups and they are numbered from 1 to 18. So these are the groups, or these are also called families. So this is your group number 1, this is group number 2. These numbers are written over here. So there are in all 18 groups, that is the vertical columns in the periodic table. This is your main frame of the periodic table. ये ऊपर का main frame periodic table का है. इसके नीचे ये 2 सीरीज हैं consisting of 14 element each. इनमें हर एक सीरीज में 14 एलिमेंट हैं एंड दे ऑल बिलोंग्स टू दिस ग्रुप. ये लेंथेनम के बाद है, इस लेंथेनम के बाद ये 14 एलिमेंट्स हैं. ये 14 के 14 एलिमेंट आपके इसी ग्रुप में हैं, ग्रुप 3 के मेंबर हैं. और ये नीचे वाले 14 एलिमेंट हैं, दे आर द आल्सो मेंबर ऑफ ग्रुप 3 बट आफ्टर द एक्टिनियम. इनको हम बोलते हैं लेंथेनॉइड्स. दीज आर कॉल्ड एक्टिनॉइड्स. तो दिस इज द स्ट्रक्चरल फीचर और स्ट्रक्चर ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल. अपार्ट फ्रॉम दीज periods and the groups, this periodic table has been divided into 4 blocks. इसके अंदर 4 ब्लॉक हैं. वो 4 ब्लॉक कौन कौन से हैं? एक हमारा S ब्लॉक कहलाता है. मैं यहाँ लिख देता हूँ ग्रुप नंबर 1 और 2. जो आपका ग्रुप नंबर 1 and 2, it constitute S ब्लॉक. ये S ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे, ठीक है. क्यों कहलाते हैं ये S ब्लॉक एलिमेंट? अगर इसमें आप हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 1s1, लिथियम की 2s1, आउटर शेल लिख रहा हूँ 3s1, पोटाशियम की 4s1, रुबिडियम की 5s1, सीजियम की 6s1, फ्रेंशियम की 7s1. इसी तरीके से इसमें बेरिलियम में लिखेंगे तो 1s2, मैग्नीशियम की 2s2, कैल्शियम की 3s2, स्ट्रोंशियम की. तो इनके अंदर क्या है, पहले 2 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उनका, वो आपका वैलेंस शेल के s ऑर्बिटल में फिल किया जाता है. दैट इज व्हाई दीज 2 ग्रुप्स, दैट इज ग्रुप नंबर 1 and 2, दे टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट S ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल. तो हम क्या कह सकते हैं, S ब्लॉक पीरियोडिक टेबल का S ब्लॉक क्या है? S ब्लॉक है, it is consisting of group number 1 and 2, and in these elements last electron is added to the s orbital of their valence shell. इसके बाद ये ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये आपका p ब्लॉक कहलाता है. ये आपका क्या कहलाता है? p ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं. तो p ब्लॉक के अंदर हमारे पास कुल मिला के 6 ग्रुप हैं, फ्रॉम ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18, and all these elements will receive their last electron into the p orbital of the valence shell. जैसे अगर आप बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ये आपकी जो है बेरिलियम में 2s2 थी, यहाँ पे ये हो जाएगी 2s2 2p1. तो यहाँ 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6. इसी तरीके से यहाँ नीचे एल्युमिनियम में चलोगे 3s2 3p2 3p1 3s2 3p2. इस तरीके से ये जो है लगातार सक्सेसिवली इन एलिमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? p ऑर्बिटल ऑफ द वैलेंस शेल. तो ये सारे के सारे 6 जो ग्रुप हैं दे विल मेक अप द p ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल. और ये जो ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक के एलिमेंट्स हैं, दीज आर कॉल्ड d ब्लॉक एलिमेंट्स. इनको हम d ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं. और इनको d ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं? कि इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है
that is successively added in the penultimate shell, जैसे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वेयर एन कैन बी यूर फ्रॉम, यहां पे फोर्थ ग्रुप होगा, तो ये आपका एन की वैल्यू लास्ट वैलेंस शेल क्या नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैक्सिमम जो वैल्यू है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, दैट इज एन। तो आपका एन ऑर्बिटल के अंदर तो एक या दो इलेक्ट्रॉन होंगे एस ऑर्बिटल में, और इलेक्ट्रॉन्स विल बी सक्सेसिवली एडेड टू दिस n-1 डी ऑर्बिटल, पेनल्टीमेट शेल के डी ऑर्बिटल में लगातार भरा जाएगा। जैसे स्कैंडियम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो यहां पे 3d1 है, फिर टाइटेनियम में आओगे 3d2, विनेडियम में 3d3, क्रोमियम में 3d5, मैग्नीज में 3d5, 3d6 आयरन में, कोबाल्ट में 3d7, निकल में 3d8, कॉपर में 3d10, जिंक में 3d10। तो लगातार जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल बी सक्सेसिवली फिल्ड इनटू द डी ऑर्बिटल ऑफ द पेनल्टीमेट शेल, इसलिए इन सबको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। और ये जो नीचे हमारे 14 ग्रुप हैं, 14 एलिमेंट्स की 2 लाइनें हैं, इनको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। और इनके अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज सक्सेसिवली एडेड टू द एफ ऑर्बिटल ऑफ योर antepenultimate shell. Antepenultimate shell means n-2, that is second from the last. ये लास्ट है, ये लास्ट से अंदर वाला, उससे अंदर वाले सेकेंड फ्रॉम द लास्ट शेल, उसको बोलते हैं एंटेपेनल्टीमेट शेल। तो एंटेपेनल्टीमेट शेल के एफ ऑर्बिटल में जाएगा, और ये इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-2 f1 to 14, n-1 d 0 to 1 और ns2, ये इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्योंकि अब एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो ये आपका जो है वो एफ ब्लॉक कहलाएगा पीरियोडिक टेबल का। तो ये आपकी मेन पीरियोडिक टेबल है, इसका कंस्ट्रक्शन है। नाउ एक चीज जो आपने ध्यान रखनी है, आप इस पे देखिए, हाइड्रोजन इज 1s1, लिथियम इज 2s1, सोडियम इज 3s1, पोटाशियम इज 4s1। तो आपके जो पीरियड्स हैं, योर ईच पीरियड इट बिगिंस विद एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू न्यू एनर्जी शेल, हायर प्रिंसिपल नंबर, यहां पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, यहां 3, यहां 4। तो नेक्स्ट एनर्जी शेल में जब इलेक्ट्रॉन फिल होना शुरू हो जाता है तो पीरियड आपका बदल जाएगा। मतलब थर्ड जो पीरियड है उसके अंदर सिर्फ थर्ड एनर्जी शेल के अंदर 3s के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं वो भरेंगे, फिर फोर्थ के अंदर फोर्थ फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिफ्थ पीरियड के अंदर फिफ्थ ऑर्बिटल की फिलिंग स्टार्ट हो जाएंगी, फिफ्थ शेल की। तो लाइक दैट वी विल बी नाउ डिस्कसिंग अबाउट कुछ पीरियोडिक टेबल में। ये हाइड्रोजन आजकल जो है यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ नहीं दिखाते। ये फर्स्ट पीरियड को लिथियम से शुरू करते हैं और हाइड्रोजन को यहाँ बीच में दिखाया हुआ है। उसका कारण यह है कि हाइड्रोजन जो है वो ना तो अल्कली मेटल से रिजेंबल करता है पूरी तरह से, और ना ही हैलोजन से पूरी तरह से रिजेंबल करता है। वी विल बी डिस्कसिंग इट व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द हाइड्रोजन इन द चैप्टर हाइड्रोजन इटसेल्फ। तो अब आ जाइए आप कि वाई देयर आर only 2 elements in the first period, and we will be successively discussing about the various number of elements in the period। जो आपका फर्स्ट पीरियड है, मैंने कहा कि कोई भी जो पीरियड है पीरियोडिक टेबल का वो किसी एक पर्टिकुलर एनर्जी शेल की फिलिंग पे डिपेंडेंट है, उससे स्टार्ट होता है। तो जो हमारा फर्स्ट पीरियड है begin with addition of electron to first energy shell, पहले एनर्जी शेल में जाएगा, मतलब n इज इक्वल टू 1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1। और आपको पता है फर्स्ट एनर्जी शेल के अंदर देयर इज ओनली 1 ऑर्बिटल, दैट इज 1s, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो एक एलिमेंट होगा जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s1, ठीक है, दूसरा एलिमेंट होगा जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2। अब जैसे ही ये 1s2 हुआ, आपका फर्स्ट एनर्जी शेल भर गया पूरा। अब जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहां जाएगा, दूसरे एनर्जी शेल में, और जैसे ही वो सेकेंड एनर्जी शेल में जाएगा अगला इलेक्ट्रॉन, हमारा पीरियड बदल के हो जाएगा सेकेंड पीरियड। क्या हो जाएगा, सेकेंड पीरियड 2s में जाते ही। तो इसका मतलब 1s के अंदर सिर्फ ये 2
पॉसिबिलिटीज है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो इसको हम कह सकते हैं कि इसमें 2 से ज़्यादा एलिमेंट नहीं हो सकते। जब हमारा सेकंड पीरियड स्टार्ट होगा तो सेकंड पीरियड में हमारे पास 2s ऑर्बिटल है और p सब शेल में 3 ऑर्बिटल है, 2px, 2py, 2pz, और इसका मतलब ये टोटल 4 ऑर्बिटल हमने फिलअप करने हैं सेकंड पीरियड के अंदर। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी एकोमोडेटेड वो कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 4 × 2 दैट इज 8। इसका मतलब आपके सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट होंगे। सेकंड पीरियड में क्या होंगे? 8 एलिमेंट, 2s2, 2p1, 2s2, 2p2, 2s2, 2p3 लाइक दैट, जब तक कि आपका पूरा सेकंड एनर्जी शेल ना भर जाए। जैसे ही अब आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा थर्ड में, तो आपका थर्ड पीरियड स्टार्ट हो जाएगा और थर्ड पीरियड के अंदर आपके कौन से ऑर्बिटल भरे जाएंगे? पहले 3s भरा जाएगा, 3s के बाद 3p भरा जाएगा, 3p के बाद थर्ड एनर्जी शेल में वैसे तो ऑर्बिटल है 3d, लेकिन आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया गया था 3d की एनर्जी 4s ऑर्बिटल से ज्यादा होती है, तो इसमें 3d नहीं भरा जाएगा, कौन सा भरा जाएगा? 4s। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 3s से स्टार्ट हुआ, ठीक है, 3s के बाद 4s भरा जाएगा। अब ये जो 4s जैसे ही भरा गया, ये दोनों एलिमेंट कहां चले जाएंगे? फोर्थ पीरियड में। ये किस में चले जाएंगे? फोर्थ पीरियड में, क्योंकि मैंने कहा जैसे ही आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज होगा वैसे ही आपका पीरियड भी बदल जाएगा। तो इसका मतलब थर्ड एनर्जी शेल में थर्ड पीरियड में सिर्फ इलेक्ट्रॉन 3s और 3p में जाएंगे, तो यहां पे टोटल इलेक्ट्रॉन है आपके 8, तो तीसरे पीरियड के अंदर भी आपके 8 ही एलिमेंट हैं। तो पहले पीरियड में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8। अब आ जाइए जब चौथे में चला गया तो पहले तो 4s भरना शुरू हुआ फोर्थ पीरियड के अंदर। फोर्थ पीरियड में आपका क्या हुआ? 4s में इलेक्ट्रॉन गए, 4s के बाद एनर्जी कम हो गई 3d की, तो 3d में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और उसके बाद किस में भरे जाएंगे? 4p में। 4p के बाद फिर एनर्जी आ जाती है 5s की, तो वो किस में चला जाएगा? नेक्स्ट पीरियड में। तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं 10, इसमें 6, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 18। तो आपके फोर्थ पीरियड में कितने होंगे? 18 एलिमेंट होंगे। जब आप फिफ्थ पीरियड में जाएंगे, देन फिफ्थ पीरियड विल स्टार्ट विद 5s। 5s के बाद अगर आप एनर्जी देखेंगे तो किसकी आती है? 5s के बाद एनर्जी आती है आपकी यूर से 4d, और 4d के बाद एनर्जी किसकी आती है? 5p की, और 5p के बाद एनर्जी आ जाती है 6s की। तो इसके अंदर फिर आपके कितने होंगे? 18 एलिमेंट, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। जब आप जाएंगे सिक्स्थ पीरियड में, जब आप जाएंगे सिक्स्थ पीरियड में तो 6s की एनर्जी 6s भरा जाएगा, 6s के बाद 4d भरा जाएगा, 4d के बाद एनर्जी होती है 5f की, और 5f के बाद होती है 6p की। तो अगर आप इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो इसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनेंगे 32, 2, 10, 14 और 6। तो 32 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड इन दीज ऑर्बिटल्स। तो आपके सिक्स पीरियड में देर आर 32 एलिमेंट्स। बिल्कुल इसी तरीके से सेवंथ पीरियड में जाओगे तो 7s, 6d, 5f, 7p, तो उसमें फिर से 32 एलिमेंट होंगे। तो सेवंथ पीरियड में भी आपके कितने होंगे? 32 एलिमेंट्स होंगे। अब इसमें यह ध्यान रखना है कि हमारे पास जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट हैं वो 94 हैं। नेचुरली अकरिंग जो एलिमेंट्स हैं, हालांकि आप आज की डेट में 118 एलिमेंट जो हैं उन सब के नाम हम दे चुके हैं, लेकिन नेचुरली अकरिंग जो हैं वो 94 हैं। पहले इसको यूरेनियम तक मानते थे, और जितने भी ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट थे उनको हम ये मानते थे कि वो सब के सब सिंथेटिक एलिमेंट है, नेचुरली नहीं मिलते। लेकिन बाद में पता लगा कि प्लूटोनियम और उससे नेक्स्ट एलिमेंट जो है, दे आर 2 एलिमेंट्स, दे आर आल्सो फाउंड इन पिच ब्लेंडे,
ओर ऑफ यूरेनियम। इसलिए हमने अपना आज की डेट में हम कहते हैं कि 94 एलिमेंट्स तो ऐसे हैं जो नेचुरली अक्कर करते हैं, बाकी सभी एलिमेंट आर्टिफिशियली ट्रांसम्यूटेड हैं, मतलब आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन से बने हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन से बने हैं। तो जो आपके जो नेक्स्ट एलिमेंट्स हैं इनके अंदर आप तो जरूरत नहीं, अब तो हमने सबके नाम दे दिए हैं, IUPAC ने कंफर्म नेम दे दिए हैं, तो सभी के नाम लिखे हुए हैं 118 एलिमेंट के। अगर आप नई पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो पहले क्या था कि जो एलिमेंट ऐसे थे जिनका एटॉमिक नंबर 100 और से ज़्यादा था, एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100, तो जनरली क्या होता था कि जो व्यक्ति किसी एलिमेंट को डिस्कवर करता था तो उसी व्यक्ति के ओनर में या उसके कंट्री के ओनर में उस एलिमेंट का नाम रख दिया जाता था। लेकिन जब 104 एटॉमिक नंबर का एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो इसकी दोनों की डिस्कवरी का क्रेडिट अमेरिका और रशिया, दैट इज एट दैट टाइम इट वाज USSR, उन दोनों ने लिया। जो आपके अमेरिकन थे दे नेम्ड इट एज रदरफोर्डियम, दे नेम्ड इट एज रदरफोर्डियम इन ऑनर ऑफ रदरफोर्ड। और जो आपके रशियन थे उन्होंने इसका नाम रख दिया कुर्चोवियम। तो एक कन्फ्लिक्ट पैदा होना शुरू हो गया। अगर इस तरीके से हर व्यक्ति अपने नाम रखने लग गया एलिमेंट्स के, देन इट विल बिकम वेरी टीडियस और वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी द एलिमेंट्स। तो IUPAC ने फिर कहा कि जब तक हम किसी एलिमेंट की डिस्कवरी के बारे में गारंटेड श्योर नहीं हो जाएंगे कि किसने एलिमेंट किए डिस्कवर किया, और जब तक हम किसी नाम को फाइनलाइज नहीं करेंगे तब तक हम 100 से ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के लिए नाम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू IUPAC नोमेनक्लेचर। और उसमें क्या करते थे, उन्होंने क्या किया, जो ये नंबर थे, नंबरों के जो लेटर्स थे, 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, और आजकल डाई भी लिखते हैं इसको, ठीक है, 3 के लिए ट्राई, इस तरीके से 4 के लिए क्वेड एक्सेट्रा, ये नंबर दे दिए इन्होंने। और जो एटॉमिक नंबर था उसी के हिसाब से फिर उनका नाम लिखना शुरू हुआ, लास्ट में IUM ऐड करके। जैसे अब ये 104 वाला था, इसमें पहला लेटर क्या है 1, तो इसके लिए हो गया अन, 0 के लिए क्या हो गया नील, 4 के लिए क्या हो गया क्वेड, और लास्ट में क्या जोड़ दिया इसके IUM। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, इसका नाम बन जाएगा अन नील क्वेडियम, ये इसका नाम बन जाएगा। अब आप कितने भी एटॉमिक नंबर के एलिमेंट का, और इसका सिंबल क्या था UNQ, इसका सिंबल क्या बन गया UNQ। तो इस तरीके से 104 से ऊपर जितने एलिमेंट्स हैं उनका नाम लिखने का तरीका ये है। अगर मान लीजिए 108 हो तो अन नील ऑक्टियम, लाइक दैट। और इसमें ये ध्यान रखना है कि लेटर अगर 2 बार आ गया तो आ गया, आपने एक को इग्नोर नहीं करना है। तो इस तरीके से इसके नाम रखने की प्रक्रिया शुरू हुई, पर अब इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि 118 एलिमेंट तक के जितने नाम हैं दे आर बीइंग कंफर्म्ड बाय द IUPAC एंड नाउ वी हैव नेम्ड ऑफ ऑल द 100 एलिमेंट्स नोन टिल डेट। आज की डेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके 118 के 118 एलिमेंट्स के नाम हमें नोन हैं। लेकिन क्योंकि ये पूछा जा सकता था इसलिए बता दिया इसको। तो आपकी ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इसके अंदर इसके बाद हमने पढ़ना है व्हाट इज मेंट बाय पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या होती है एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या है, रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स with similar properties after a regular interval of atomic number। एक रेगुलर इंटरवल ऑफ एटॉमिक नंबर के बाद
ऐसे एलिमेंट्स का बार बार दोहराना या बार बार आना जिनकी आपस में प्रॉपर्टीज रिजेंबल करती है, इसको हम कहते हैं पीरियोडिसिटी। इसको हम क्या कहते हैं? पीरियोडिसिटी। नाउ द नेक्स्ट इज कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, क्या कारण है पीरियोडिसिटी का? इसको हम एक ग्रुप के एलिमेंट्स की हेल्प से शो करेंगे। जैसे हमारा लिथियम है एटॉमिक नंबर 3, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s1। लिथियम के बाद हमारा सोडियम आता है एटॉमिक नंबर 11, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s1। पोटाशियम एटॉमिक नंबर 19 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, ये आया। अब मैं ज़्यादा एलिमेंट्स ना लिखते हुए इस ग्रुप के अब आपको समझा रहा हूँ कि पीरियोडिसिटी क्यों हुई। आप क्या देख रहे हैं? 8 एटॉमिक नंबर के डिफरेंस के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी 2s1। s ऑर्बिटल में लास्ट शेल के s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन था। यहाँ पे भी क्या है? लास्ट शेल के s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे भी क्या है? लास्ट शेल के s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के हिसाब से क्या है? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? वो फंक्शन है किसका? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, एटॉमिक नंबर का। एटॉमिक नंबर का है तो ये एटॉमिक नंबर के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज, एक जैसी प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स बार बार क्यों रिपीट करते हैं आफ्टर ए सेंटर इंटरवल ऑफ एटॉमिक नंबर। और वो एटॉमिक नंबर का इंटरवल क्या है? 2 8 8 18 18 32 32, या इनको सीधा कह सकते हैं 2 8 18 32। इन एटॉमिक नंबर के डिफरेंसेस के बाद सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट होती है, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट होती है, इसलिए एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज भी रिपीट होते हैं। और ये जो नंबर है इनको हम बोलते हैं मैजिक नंबर्स। दीज आर कॉल्ड मैजिक नंबर। तो कोई व्यक्ति अगर आपसे ये पूछ ले कि व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, तो हम ये कहेंगे द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इज रेपिटेशन ऑफ सिमिलर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ एटॉमिक नंबर। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में एंड देयर वेरिएशन इन द पीरियोडिक टेबल, कि वो कैसे आपकी प्रॉपर्टीज वेरी करती हैं पीरियोडिक टेबल में ऑन मूविंग अलोंग ए पीरियड। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की, एंड दैट टू एट एटॉमिक लेवल। फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है दैट इज योर एटॉमिक रेडियाई। हम एटॉमिक रेडियाई के बारे में बात करेंगे। एटॉमिक रेडियाई क्या होता है? एटॉमिक रेडियाई होता है आपका दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल। सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक के डिस्टेंस को हम एटॉमिक रेडियस लेते हैं। अब क्योंकि आपको ये पहले पढ़ाया जा चुका है, बहुत बार ये बताया जा चुका है कि एटम इतना छोटा है दैट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू यूर आइसोलेट एन एटम एज वेल एज टू ऑब्जर्व इट। तो हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे हम किसी इंडिविजुअल एटम का एब्सोल्यूट एटॉमिक रेडियस निकाल सकें। तो हम किसी भी एटम के डिफरेंट टाइप के रेडियाई डिफाइन करते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड कोवलेंट रेडियस and the second one is called your van der Waals radii. So there are two type of radii, that is covalent radius and the van der Waals radius. So these are the radii in fact in the combined state. Covalent radius क्या है? Covalent radius को हम define करते हैं, suppose किन्हीं दो elements के atoms के बीच में आपका covalent bond बना हुआ है. As you are aware of the fact that a covalent bond is formed by overlapping of atomic orbitals,
ये हम बॉन्डिंग में पढ़ाएंगे अभी दोबारा, थोड़ा सा आपको आइडिया है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है तो ये होता है। तो ये दो बॉन्डेड एटम्स हैं, ये इनके न्यूक्लियाई के सेंटर्स हैं। तो इस न्यूक्लियाई के सेंटर के बीच के डिस्टेंस का आधा, हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस, दैट विल बी कॉल्ड योर कोवलेंट रेडियस। ये आपका कोवलेंट रेडियस है, ये वाला जो है दिस इज योर कोवलेंट रेडियस। सो हाउ विल यू डिफाइन द कोवलेंट रेडियस? ए कोवलेंट रेडियस इज डिफाइंड एज half the distance between the center of nuclei of two bonded atoms or two atoms bonded by a covalent bonds, जैसे भी आप लिखना चाहें उसको हम कहते हैं कोवलेंट रेडियस। इसी तरीके से क्या होता है, कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं इनके मॉलिक्यूल्स बन गए, उनके दो मॉलिक्यूल्स के बीच में वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। जैसे ये एक आपका एटम है, ये दूसरा एटम है, इन दोनों ने ओवरलैप किया, इन दोनों के बीच में एक वंडरवॉल फोर्स होता है, बिना बॉन्ड बने ही, बॉन्ड नहीं होता। तो जो आपका वंडरवॉल रेडियस होता है, वंडरवॉल रेडियस इज टेकन एज हाफ ऑफ द डिस्टेंस, दैट इज टेकन एज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड एटम। ये जो हैं इन दोनों के डिस्टेंस का आधा, दैट विल बी कॉल्ड योर वंडरवॉल रेडियस। तो दो नॉन बॉन्डेड एटम के सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई के बीच के डिस्टेंस का आधा तो कहलाएगा वंडरवॉल रेडियस, और दो कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियाई के सेंटर के बीच के डिस्टेंस का हाफ, दैट विल बी कॉल्ड योर कोवलेंट रेडियस। इस फिगर से यहां पे ये बड़ा क्लियर है दैट द कोवलेंट रेडियस ऑफ एन एटम इज ऑलवेज ए बिट स्मॉलर देन द एक्चुअल रेडियस, क्योंकि एक्चुअल रेडियस तो एटम का यहां से यहां तक है, हम कहां तक ले रहे हैं, यहां तक। तो दिस इज ए बिट स्मॉलर देन द एक्चुअल रेडियस और एब्सोल्यूट रेडियस ऑफ द एटम, वेयर एज योर वंडरवॉल रेडियाई दे आर ए बिट लार्जर देन द absolute or actual radius of the atom. We will be discussing about the variation of atomic radii in the periodic table, that is on moving along a period or moving along a group, in our tomorrow's lecture. So today we are just finishing our here. हम अपने लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।